हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेथड स्टडी को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम मेथड स्टडी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो किस तरीके से हम जो फैक्ट्स हैं उनको रिकॉर्ड्स करते हैं, किस माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं। तो जो डिवाइस, जो स्ट्रेटजी हम लोग यूज़ करते हैं मेथड स्टडी के दौरान फैक्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, वो स्ट्रेटजी होती है कि हम जो फैक्ट्स हैं उनको चार्ट्स के दौरान, अलग अलग फैक्ट्स के लिए अलग अलग चार्ट्स होते हैं, चार्ट्स के द्वारा रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आप स्लाइड में पढ़ सकते हैं कि प्रोसेस से के रिगार्डिंग जो फैक्ट्स हैं उसको हम आउटलाइन, फ्लो प्रोसेस और टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट में रिकॉर्ड करते हैं। जो मूवमेंट है और मूवमेंट का जो पाथ है किसी ह्यूमन का, किसी मशीन टूल का या मटेरियल का, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं फ्लो डायग्राम और स्ट्रिंग डायग्राम से। और वर्क प्लेस पर या वर्क प्लेस से रिलेटेड जो फैक्ट है कि वर्क प्लेस पर क्या एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, किस तरीके के मोशन है मैन, मटेरियल और मशीन के, तो उनको हम मल्टीपल एक्टिविटी और सीमो चार्ट में रिकॉर्ड करते हैं। इन्हीं चार्ट्स की एनालिसिस करके फिर मेथड स्टडी जो इम्प्लीमेंटेड है, ऑनगोइंग मेथड स्टडी है या प्रोडक्शन स्ट्रेटजी है, उसकी एनालिसिस होती है और एक नई मेथड स्टडी या स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है। तो जो प्रोसेस चार्ट होते हैं ये हमको किसी डायग्राम, पिक्चर और ग्राफ के ज़रिए, ठीक है, एक कंप्लीट सिचुएशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि किसी प्रोसेस में क्या चल रहा है, क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, कौन उन ऑपरेशंस को डील कर रहा है, ठीक है, वो ऑपरेशंस कैसे पूरे हो रहे हैं, कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये चीज़ें हमको प्रोसेस चार्ट के द्वारा मिल जाती हैं। कुछ सिंबल्स, कुछ चिन्ह हम लोग अलग अलग ऑपरेशंस को, अलग अलग एक्टिविटीज़ को, अलग अलग इवेंट्स को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। टू शो द डिफरेंट इवेंट्स, एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशंस वी यूज़ द डिफरेंट सिंबल्स in the process chart. Let's see what are the symbols. These are the symbols of the process chart to record the facts. You can see the operation is shown by the O. Arrow shows the transportation activity. A square shows the inspection activity. D shows the delay in activity. A triangle stands on its apex, shows the storage. Okay, then in the upcoming slide we will study these symbols and their uses. The first symbol is circle. The circle shows, in a chart, the circle shows an operation. Whenever there are some changes regarding physical or chemical characteristics of an object or the physical shape of a material, or there is an assembly or disassembly of something, these all comes under the operation phase.
whenever there is the flow of the information, either someone is providing or releasing the information and someone is receiving the information, this is also comes under operation category. Okay, whenever you see on a chart a square, then you will come to know that it shows the inspection activity. Inspection means someone or some team is checking an object for its desired quality and ordered quantity. Also identify the product, that the product is same as demanded or something else. Okay, an arrow will show the transport activity. The transport will refer to the movement either of human resources or some machine tool or object, material from one place to another place or one station to another station, either within the organization or from within to outside the organization. But whenever during an operation the material transfer from one machine tool to another machine tool takes place, it will not considered as the transportation. Okay, whenever you see on a chart the symbol of D, you will come to know that it is showing the delay or the temporary storage. Whenever an operator, a machine tool waits for the previous operator machine tool to release the material so that it will be processed on the same table or same station, this is called the delay. जब कोई मशीन, जब कोई ऑपरेटर ये वेट कर रहा हो कि उससे पहले वाली मशीन या ऑपरेटर अपनी प्रोसेस मटेरियल पर ख़त्म करके अपना ऑपरेशन फिनिश करके उस मटेरियल को आगे सेंड करे, ताकि वो जो मशीन है ऑपरेटर है वो अपना काम कर सकें, अपना ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकें। तो इस आइडल टाइम को, इस वेटिंग टाइम को हम लोग डिले कहते हैं। ठीक है, अगर आप कोई इस तरीके का ट्रायंगल देखें जो अपने एपेक्स पर स्टैंड कर रहा हो, ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये परमानेंट स्टोरेज हो चुका है किसी मटेरियल का, किसी प्रोडक्ट का। ठीक है, स्टोर रूम के अंदर। फिर जो चार्ट हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेशन और आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। ऑपरेशन चार्ट में या आउटलाइन प्रोसेस चार्ट में किसी प्रोसेस, जो कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसके अंदर जो भी ऑपरेशंस और इंस्पेक्शन की एक्टिविटी हो रही है उनको एज इट इज़ सीक्वेंशियली रिकॉर्ड करने के लिए हम इन चार्ट्स का
यूज़ करते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि हमको सभी ऑपरेशंस के सीक्वेंस को शो करता है, ठीक है। और हम दूर से ही देख के ये बता सकते हैं कि हमारे प्रोसेस में अभी हमारे मटेरियल की पोजीशन कहाँ है, वो किस मशीन टूल पर है और किस ऑपरेशन के अंडर है। ये कन्वेंशंस हैं, प्रोसीजर हैं इस चार्ट को बनाने के लिए। आप इनको पढ़ सकते हैं कि जो टाइटल है चार्ट का उसको टॉप में लिखा जाता है। राइट हैंड साइड से इस चार्ट का जो एंट्री है वो स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से ये रिकॉर्डिंग है कि किस तरीके से हम जो है डेटा रिकॉर्ड करते हैं चार्ट के अंदर, आप पढ़ सकते हैं। सभी एक्टिविटीज़ के टाइम को नोट डाउन कर सकते हैं, करते ही हैं। सभी ऑपरेशंस को नंबर बाय नंबर सीरियल ऑर्डर में हम लोग शो करते हैं चार्ट के अंदर। अलग अलग स्टेशंस पर अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। ये एक सैंपल चार्ट है। देन फ्लो प्रोसेस चार्ट। फ्लो प्रोसेस चार्ट भी हमको ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि किस सीक्वेंस में हमारे सभी ऑपरेशंस, इंस्पेक्शन एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज ये हो रहे हैं, ठीक है। गाइडलाइंस हैं किसी चार्ट को प्रिपेयर करने के लिए। ये सभी गाइडलाइंस आप पढ़ के अपने दिमाग में रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के दौरान। ऑब्जेक्टिव्स हैं फ्लो प्रोसेस चार्ट को बनाने के लिए कि प्रोसेस लेआउट हमारा इम्प्रूव किया जा सकता है, मटेरियल हैंडलिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है, आइडल और डिले रिड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है। ये सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कुल मिला के प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, एफिशिएंसी बढ़ाना है हमें अपने प्रोसेस की, तो हम प्रोसेस चार्ट्स का यूज़ कर देते हैं। फ्लो प्रोसेस चार्ट के टाइप हैं मैन और वर्कर फ्लो प्रोसेस चार्ट। इसके अंदर हमारा वर्कर क्या कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है किसी एक्टिविटी को करने के लिए, ये सब रिकॉर्ड हो जाता है। मटेरियल टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट होता है। इसके अंदर हम मटेरियल के हर एक स्टैंड पर मटेरियल की क्या पोजीशन है, क्या कंडीशन है, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इक्विपमेंट टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट होता है। इसके अंदर हम क्या इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, क्या मशीन यूज़ हो रही है, किस तरह से हो रही है, कितने समय के लिए हो रही है, कौन यूज़ कर रहा है, किस ऑपरेशन के लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये एक सिंपल चार्ट है। कोई ऑपरेशन दिखाया गया है, फिर उसका डिले दिखा दिया, डिले के बाद में फिर इसका मूवमेंट दिखाया, थर्ड स्टेज पर मूवमेंट हुआ, फिर मूवमेंट होने के बाद में इंस्पेक्शन फेज़ में चला गया, इंस्पेक्शन के बाद में वापस से ऑपरेशन में आया, फिर ऑपरेशन होता रहा, ठीक है। ऑपरेशंस बताए गए कहाँ कहाँ गया, ये ट्रेजरर के पास गया, कैशियर के पास गया, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी बुक कीपर के पास में गया, एनवलप हुआ, वापस से मूवमेंट हुआ, इंस्पेक्शन के टीम के पास गया, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल क्या क्या इवेंट हुए, क्या क्या ऑपरेशन हुए,
ये सब चीज़ें ये चार्ट हमको बता देता है। टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। इन चार्ट्स को जो हमने अभी डिस्कस किए हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं, बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हैं, इनका यूज़ किया जाता है। और एक इंजीनियर को चार्ट को बनाना भी आना चाहिए, चार्ट को रीड करना भी आना चाहिए। ठीक है, ऑपरेशंस का, एक्टिविटीज़ का, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना आना ही चाहिए। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, आप लोग सोचें कैसे डेवलप होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। अपना ध्यान रखें, माता पिता का ध्यान रखें, घर में कोई कम उम्र के लोग हैं उनका ध्यान रखें, और कोई ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनका ध्यान रखें।